Good morning students. So today we will solve some more problems on velocity, or we can say speed. Actually if we solve the problems based upon the speed and velocity, both are near about the same quantity if we are considering only magnitude. Now see your problem. The odometer of a car reads 2000 km at the start of the trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, 8 hours is the time to complete the trip, then calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. See, you have to calculate here only average speed. You don't have to calculate here velocity. Actually velocity and speed are same in problem, because in problem we mostly don't consider the direction, only magnitude we just consider. So if it is not mentioned, then you have to consider the same, that is speed and velocity. Now see what is the problem. Odometer. So what is odometer here? Odometer is an instrument which is used to measure the distance. Already we have written in notes. So this is car, and every car is having a odometer, that means every vehicle is having. So at the start, when the car hasn't started its journey, the reading shown by the odometer was 2000 km, and as soon as the car starts its journey, its speed increases and it moves in the forward direction, and slowly the meter will change, and after the end, when we stop the car, it reads 2400 km. पहले कितना था उसका डिस्टेंस, सबसे स्टार्ट ऑफ द, जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया था तो 2000, और जब उसने ट्रिप एंड किया था तो कितना हुआ 2400. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होगा उसका, फाइनल ट्रिप माइनस इनिशियल ट्रिप, क्योंकि ये 2000 तो उसका पहले से ही था ना, ये 2000 उसने स्टार्टिंग के बाद तय नहीं किया, ये पहले से ही था, तो हम इसको माइनस करेंगे. सो distance is equal to end of trip minus start of trip. So what is end of trip? 2400 km minus 2000 km. So it equals to 400 km. So this 400 km is your distance. Now time taken. What is the time for this journey, for this trip? How much is the time? 8 hours. So time taken is equal to 8 hours. So we will calculate the average speed. Now what is the formula for average speed? Average speed is equal to distance upon time taken. So what is distance? 400 km. And what is time? 8 hours. So we just put the value and calculate the answer. 40 comes in the table of 8 5 is 40, and this one is 0. So your answer is 50 km per hour. That means first part has been completed. Now what is the second part? Meter per second. Now you have to convert this speed which we have calculated in kilometer per hour in meter per second. So how you will convert? 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? 1000. So we will multiply this kilometer by 1000 meter. So this is converted into meter. And 1 hour means कितना सेकंड होता है? 1 hour means 60 minute, and 1 minute means 60 seconds. So it is 60 into 60. ये 2 0 आपके ये 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको 50 into 10 मतलब क्या मिला? 500. और डिनोमिनेटर में 6 6 36. तो ये हो गया आपका. आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा. सिंपल सा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ डिस्टेंस निकाला हमने, टाइम दिया है. आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड द स्पीड, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट मीटर पर सेकंड, बिकॉज इट वाज आस्क. ये अगर मीटर पर सेकंड नहीं पूछा रहता तो आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाता, मतलब यहाँ पे आंसर आपका खत्म हो जाता. ओके, नाउ सी द सेकंड प्रॉब्लम. दिस टू, ये जो हमने प्रॉब्लम देखा, ये वाला भी प्रॉब्लम और ये भी आपका प्रॉब्लम, ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, लेसन मोशन जो चैप्टर है ना उसमें दिया हुआ है. उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. स्विमिंग पूल में स्विम करती है, उस स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी है? 90 मीटर. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute. सी द टाइम, 1 minute, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. मतलब वो एक एंड से इधर जा रही है और उस एंड से वापस भी आ रही है. तो ये पूरा डिस्टेंस कवर अप करने के लिए उसने कितना, मतलब कितना डिस्टेंस कवर अप किया उसने? 180 मीटर. और कितने टाइम में किया उसने? 1 minute में. सिर्फ इधर से जाने वाला नहीं, इधर में गई वो और इधर से सेम पाथ में वो वापस भी आई, ऐसा आपके प्रॉब्लम में मेंशन है.
तो ये ऑलरेडी हमको पता है लेंथ ऑफ पुल कितनी है 90 मीटर, तो 90 + 90 कितना हो गया उसका टोटल डिस्टेंस 180। ऑलरेडी उन्होंने मेंशन भी किया है कि उसने 180 मीटर टू एंड फ्रो कंप्लीट किया है करके। टाइम इज गिवन 1 मिनट। सी हियर द डिस्टेंस वी हैव टेकन इन मीटर, तो हम इसको मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना और इसको आवर्स में, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड है, इसलिए हम इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। नाउ सी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, 180 किलोमीटर, 180 meter, and total time is 60. So 0 0 is getting cancelled, 6 3s are 18. So your answer is speed is equal to 3 meter per second. Now again the next part, see what is asked, find the average speed and average velocity. अब velocity पूछा है मतलब डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है. You have to consider the displacement, that is you will need the initial position and final position. Now see how she completes the journey. यही पे सेम ऐसे ही जर्नी। अब उसने क्या बोला है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक गई सेकंड एंड तक, और यहाँ से फिर से वहाँ पे जाके रुकी क्या, वो नहीं, वो वहाँ से फिर से वापस आ गई। इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था और उसका फाइनल पॉइंट भी यही था। तो अब दोनों सेम है, इनिशियल पॉइंट भी वही है और स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट भी वही है, क्योंकि वो वहीं पर वापस आ रही है। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये 0 0 ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। टाइम विल बी सेम, 1 मिनट उसका टाइम है, तो टाइम भी आपका 1 मिनट मतलब 60 सेकंड रहेगा। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो व्हाट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट, 0। क्यों 0 है, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसा है, सेम। अगर वो इस एंड पे रुक जाती तो फिर आंसर आपका अलग आता, लेकिन वो यहाँ पे रुकी नहीं है, वो अपने पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आई है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे लिया अपन ने, 0। सो इट इज़ 0/60, दैट इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। सी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड।